Okay, so we have to start with the question number 93. Please read the following. Which of the following articles totally forbids any religious instructions in educational institution wholly mentioned out of state funds? So Article number forbids का 28. मतलब है रोकना. Forbids का मतलब है क्या है? You need to stop. So article number 28, 26, 27, 28 and 32. Let us see the article numbers. What is the first article which has been given? What is the first article? 26, 27, 28 and 32. What is the first article? 26. Freedom to manage religious affairs. 26 is freedom to manage religious affairs. 27, Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. 28, Freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. in certain educational institutions. So we have 20. What is 26? Freedom to manage religious affairs. 27, freedom as to payment of taxes. 28, attendance, freedom as to attendance of religious instructions. And what are the other option? 32. Remedies for enforcement of remedies for enforcement of rights conferred by this part. Conferred by this part. तो अपना क्वेश्चन क्या है? Religious instructions. Which article prohibits the religious instructions? So कौन सा हो सकता है इसमें से? 28. तो article number 28 forbids any religious instructions solely maintained by state funds. Solely maintained by state funds. ठीक है? Clear point here? Any doubt? If you are good with at least the headings of the articles, it will be useful for you. ठीक है? Then Yes, sir. next question. Please read. The fundamental duties have been incorporated by the Indian Constitution by Dash Amendment Act. By 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act क्या है? It is also known as mini constitution. 42nd Amendment कब आया ये? इंदिरा गांधी टाइम. इंदिरा गांधी के पीरियड में और 19 कौन? Who recommended it? Who was the person who recommended the following things? Which committee? कुछ कमिटी रिकमेंड करी थी ना फंडामेंटल ड्यूटीज रखना बोल के. व्हाट वाज द कमिटी नेम? स्वराज सिंह स्वरण सिंह कमेटी. स्वरण सिंह स्वरण सिंह committee. This amendment is also known as mini constitution. Known as mini constitution. ठीक है? It was done during emergency period. It was done during emergency period. ठीक है? Clear a point?
Hello. Hello. Sir, what was the question? Please read. The fundamental duties have been incorporated by the Indian Constitution by Dash Amendment Act. So, कौन सा amendment से लाया? Fundamental duties. Which amendment? 42nd 42nd Amendment. Amendment. कब आया? what is the year 1976. and what is the, it is also called as Mini Constitution. mini constitution. ठीक है? Done. जी sir. So we are not going into the depth of the constitutions, depth of the amendments. हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं बिकॉज अमेंडमेंट बहुत बड़े हैं. ठीक है, जब आप अमेंडमेंट गए तो फिर आपको उसमें उलझ जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन. Please read the next When a question. bank when a bank finances a vehicle, what kind of charge does bank hand over to the vehicle as a primary security? So क्या है? देखिए, what is the first one? When a bank finances a vehicle, first one is pledge. Second one? Second one is lien. Third one, hypothecation. Fourth one is mortgage. Fourth one is mortgage. अब Mortgage. जब क्वेश्चन क्या पूछा उन्हें, when बैंक क्या करता? बैंक पे करता सर. बैंक पे करता. Mortgage. मॉर्गेज का मतलब रहन रखाना. मॉर्गेज मतलब रहन रखाना. प्लेज का मतलब क्या है? नो, प्लेज इज रिलेटेड टू, प्लीज सी द चैट्स. पहला ऑप्शन क्या है? प्लेज. Pledge. इट इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी. इट इज रिलेटेड टू, pledge is related to movable property, whereas mortgage is related to immovable property. इतना याद रखो. प्लेज किससे रिलेटेड है? Movable property. मूवेबल प्रॉपर्टी. ये तीनों के तीनों देखो. प्लेज, इफ यू से, अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न एनालाइज करें, प्लेज कॉमा लियन कॉमा एंड हाइपोथिकेशन. both three are related to what property? Movable property. मूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसका जब प्लेज, लियन और हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मॉर्गेज किससे रिलेटेड है? Immovable. इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ऑटोमेटिकली विच ऑप्शन इज एलिमिनेटेड? मॉर्गेज इज Mortgage. एलिमिनेटेड. तो अब आपको है प्लेज, लियन एंड हाइपोथिकेशन. when you are talking about pledge, now what is pledge? pledge क्या है? Pledge. pledge is Pledge. Promise. pledge का ना, pledge का मतलब ये है कि goods are given as security for repayment of debt or performance of promise. so pledge क्या है? goods are, it is related to movable property or immovable property? Movable. movable. movable property बोलते कि the term goods are used. goods are
given as security for repayment of a debt. Debt माने डेट माने क्या? डीईबीडी, डेबिट नहीं बोलते उसको, डेट बोलते। और ये कौन से सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 172 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। तो डेप्थ कर्जा लेना है ना? डेट फ्रॉम कर्जा। तो व्हाट इज जी, प्लेज? goods are given as a security for the repayment of debt. फॉर रिपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कौन से सेक्शन में है Promise. ये? 172 of Contracts Act 1872. So what is second option? Lien. Lien. Lien, it is a right. It is a right to retain possession of goods belonging to the debtor. सर लियन वैसा बोल रहे थे, इट कुड बी मूवेबल एज इमूवेबल एज वेल, नो? नहीं नहीं नहीं, इमूवेबल लियन देखिए भैया, फॉर लियन का एग्जैक्टली बोल रहा हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह उठे, पेट्रोल पंप पे चले गए, ठीक है, अब आप बोले उसको कि भाई पूरा पेट्रोल भर दो, पूरा क्या बोलते हैं, टैंक फुल कर दो। और सडनली आपको ये महसूस हुआ कि आपके पास वॉलेट आप भूल गए और फोन आपका बंद हो गया। ओके। तो आप क्या करें? अब आप उसको, पेट्रोल पंप वाले को बोले, देख भाई ये मेरा फोन है, मेरा आईफोन है, ये 1.5 लाख का फोन है, जब तक मैं नहीं आया, जब तक मैं पैसे लेके आता हूँ, जब तक ये पैसे रखो, जब तक ये गुड रखो। मैं आपकी घड़ी है या ओके। फोन है, जो भी आपके पास वैल्यूबल चीज है, वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए रखो। टेम्पररी। इट्स ओके। अ राइट टू रिटेन पोजीशन। उसे गिरवी नहीं रखा रहे आप, अच्छा। खाली टेम्पररी पीरियड ये रखो, मैं अभी जाके आ रहा हूँ बोलते। ओके। ओके। अगर मैं नहीं आया तो तुम ये रख लो, ले लो पैसे। समझा? जी इट सर, इज ए समझ राइट में टू आया। रिटेन पोजीशन। प्लेज में क्या करते हैं आप? पूरा पोजीशन भी दे देते हैं। लियन में सिर्फ राइट टू रिटेन पोजीशन देते हैं बस, उतना ही, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट और टेम्पररी पीरियड। पीरियड। जी सर। इट इज रिकॉग्नाइज्ड, it is recognized, it is not given, it is but is recognized under section 72 of Indian Contract Act. याद रखो। सो व्हाट इज लियन? लियन का मतलब क्या है? Right to retain the possession of goods belonging to the debtor. बिलोंगिंग टू द डेटोर, ठीक है। Debtor. ओके। सो कौन से सेक्शन में इसको रिकॉग्नाइज करे? Under Section 172 of Indian Contracts Act 1872. 1872। अब इसके कितने तरीके के टाइप्स है? टाइप्स, वन इज पर्टिकुलर, वन इज पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। ठीक है, वन इज पर्टिकुलर, वन इज जनरल। ठीक है, समझना? Yes, sir. ये जस्ट है राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्या है? Okay. हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या है? इट इज ए चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज ए चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, इज चार्ज on movable property where possession remains with the borrower, माने डेटोर, माने
डेटोर commonly used in vehicle or business loans. So what is hypothecation? It is a charge on movable property where possession remains with borrower, commonly used in vehicle or business loans. अब फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप को गए आप, ठीक है। अब आप गाड़ी में पेट्रोल भरा लिए। अब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं आपके पास कुछ भी, आप सिक्योरिटी भी नहीं है रखाने के वास्ते। आप सिर्फ उठ के चले गए थे बस, याद भी नहीं है, कुछ भी पहन के भी नहीं गए आप, ना घड़ी ना कुछ भी, खाली जस्ट नॉर्मल चले गए। तो अगर आपके पास कुछ भी रखाने के लिए नहीं है, तो उन्हें क्या बोलता पेट्रोल पंप वाला? गाड़ी रख दे के जाओ बोलता खामोशी से, जाओ गाड़ी रखो, फिर आके पैसे देके वापस जाओ। अगर आपको बैंक वाला खुद पैसे दे रहा, और बैंक वाला खुद पैसे क्यों दे रहा आपको? गाड़ी खरीदो। गाड़ी खरीद के बोल रहा भाई आप गाड़ी रख लेके, गाड़ी से कमा के आप मेरे को पैसे भरो बोल के, तो उसे क्या बोलते हैं आप? Hypothecation. हाइपोथिकेशन। अगर आप कोई सिक्योरिटी रखा रहे, इफ यू आर कीपिंग एनी सिक्योरिटी, ठीक है, जब अपना सिक्योरिटी रखा रहे तो अब आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ले रहे ना, गोल्ड के लिए जा रहे आप, गोल्ड क्या करते हैं? प्लेज करते हैं आप हमेशा। गोल्ड अगर आप किसके पास रखाते जाके, कौन ब्रोकर रहता? Yes, sir. कौन ब्रोकर क्या Locker. करता उन्हें? गोल्ड रख लेता, उसका पैसा देता, क्या गोल्ड वापस करता उन्हें आपको? पैसा देता, गोल्ड रख लेता। अगर कोई भी, जो भी, अगर आप जो भी सिक्योरिटी रखा रहे आप, वो आपको वापस कर दिए, तो क्या बोलेंगे उसको? अगर पोजेशन सिक्योरिटी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन बोरोवर के पास ही है, दैट इज डेटर, देन इट इज कॉल्ड एज Lien. हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन। Hypothecation. लियन में या प्लेज में क्रेडिटर के पास ही रहता। Okay. हु इज अ So क्रेडिटर? in short, what do we say, sir? Hypothecation ko in short, what do we say? इन शॉर्ट, देखो सुनो, एक तो पैसा देने वाला रहता, जी उसको क्या बोलते जी हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते सर? जो खरीदा दे रहा उसको क्या बोलते हैं? नहीं मालूम सर। चैट, रीड द चैट्स। Creditor, क्रेडिटर। जो खरीदा ले रहा, debitor, डेटोर। इट्स नॉट डेबिटर, इट्स डेटोर। okay. जो खरीदा दे रहा उसको क्या बोलेंगे आप? Creditor, क्रेडिटर। जो खरीदा ले रहा, debtor, डेटोर। अब अगर आप किसी कोई दुकान पे गए, गोल्ड रखने की दुकान पे गए, वो क्या हो गई? जी प्रॉपर्टी हो गई, pledge, दैट इज हम्म मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, जी जो सिक्योरिटी को रखा रहे आप, ठीक है। अब जी क्रेडिटर क्या करता? वो सिक्योरिटी रख लेके आपको खरीदा देता। समझ आ रहा? जी इन प्लेज एंड लियन, दस पोजेशन का मतलब क्या है? प्लेज और लियन में क्या है? व्हाट इज प्लेज एंड व्हाट इज कॉमन? जो सिक्योरिटी के तौर पे हम रख रहे हैं वो क्रेडिटर के पास में ही रहेगा, pledge और lien में। क्रेडिटर के पास ही रहता, प्लेज में और लियन में। इन हाइपोथिकेशन में क्या फर्क है?
In hypothecation, the possession of the security is with debtor. समझ में आ रहा? जी, मतलब क्या है इसका? जो हाइपोथिकेशन है, प्लेज का मतलब क्या है ये बोलेंगे. pledge means the position of the security it will be with the creditor. लियन में क्या होता? Same thing, position of the security it would be with the creditor. But in hypothecation, the position of the security is with the debtor. तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्हें? When a bank finances a vehicle, what kind of charges does bank have over the vehicle as a primary security? तो क्या जो व्हीकल जो बैंक वाला पैसे दे रहा वो गाड़ी खरीदो बोल के, क्या बैंक वाला गाड़ी रख ले रहा या वो बोरोवर को दे दे रहा? दे दे रहा। तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज दैट? व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दैट? Hypothecation. Hypothecation. हाइपोथिकेशन. समझ में आ रहा? जी सर। क्लियर है पॉइंट? जी सर। अगर वही मॉर्टगेज की बात करें तो मूवेबल है, इमूवेबल है? That is immovable. इमूवेबल. इसकी स्टोरी अलग है पूरी. ठीक है. सो व्हाट इज आवर आंसर? Hypothecation. Hypothecation is our answer. Let us see. So what are the key given? ठीक है. जी सर। क्लियर है पॉइंट? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज रीड. A warrant. A warrant case means a case relating to an offense punishable with dash. अब देखिए, उसमें आपको ये प्योरली क्रिमिनल लॉ से है. जी। केस का मतलब क्या है? केस का मतलब केस है सर। प्लीज सी द चैट्स. ओके। Criminal Because or whatever I'm civil asking, or civil proceedings. क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स. अब क्रिमिनल जी। केस अगर हुआ समझिए, तो टाइप्स ऑफ क्रिमिनल केसेस, और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस बोल सकते हैं आप. कितने होंगे? वन इज समन्स केस बोलते हैं. टू वारंट केस. थ्री समरी केस. सो कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है? 3. व्हाट आर दोज? Summons case, warrant case, summary case. समरी केस. समन्स केस का मतलब है, समन्स केस किसको बोलते हैं? वेयर द offense attracts less than 2 years of punishment is called as summons case.
What is summons case? Summons case where the offense attracts less than 2 years of punishment is called summons case. मतलब जो भी ऑफेंस रहते जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर से कम रहती वो वाले केसेस को समन केसेस बोलते हैं. उसको समन्स केस समझ में आ गया. जी. वारंट केस where the offense attracts death, life, imprisonment, or more than 2 years of imprisonment is called as warrant case. ठीक है. What is a warrant case? Warrant case where the offense attracts death, life imprisonment, or more than 2 years of imprisonment is called as warrant case. Is called as warrants case. ठीक. So अब options बोलो. Death or imprisonment for life, death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 7 years. Death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years. And the fourth one is death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 10 years. Option So क्या 3 बोलेंगे correct है इसको? sir. So option number 3. Where is 3. death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years? Then it is called as which case? Warrant case. ठीक है. और एक टाइप ऑफ केस क्या है? Summary case. समरी केस जो 2 साल है. ये क्या है देखिए. समन्स केस क्या है? लेस देन 2 इयर्स. लेस देन 2 इयर्स. वारंट केस क्या है? ग्रेटर देन 2 इयर्स. More, क्या 2 more साल than का 2 years. पनिशमेंट बोले तो क्या कौन सा केस बोलेंगे? समरी केस बोलेंगे. Summary case. जो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का रहता है उसको बोलेंगे आप समरी. ठीक है. लेस देन 2 इयर्स विच केस? Summons case. Greater than 2 years or life or death? Warrant. Warrant. Warrant Exactly case. 2 years. Summary case. Summary case. ठीक है. So इतना याद रखो. It's more than enough. Next question. When was the Supreme Court of India inaugurated? 28th Supreme Court January of India. 1950. 28 January 1950. What is the motto of Supreme Court? What is the motto of Supreme Court? यातो धर्म स्थातो जया. यतो धर्मा ततो जया. स्थातो जया. So who is the कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? यूनियन जुडिशरी बोलते. यूनियन जुडिशरी. It start with article number 124. कौन सा आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा? 124. It start with article number 124 and concludes with article number 147.
कहाँ जा रहे? ड्रा It starts with article number 124. 124 and ends with article number 147. 147. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट, please read next question. Why all other August 15, 1947 is important? Independence Day. November 26, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन. we adopted and enacted our constitution. January 26, Adopted 26 January 19 Republic Day. डे क्या दिया देखो, ईयर क्या दिया उन्हें, 26 January. फंस जाते। अच्छा 1950 में रिपब्लिक डे ना सर? हाँ, फंस जाते उसमें आप, ओके. जल्दबाजी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Act number 43 of 2005 recognizes domestic violence against home. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस बोल के कानून है। सो Okay. डोमेस्टिक वायलेंस किसके ऊपर हो सकता? एनी वुमन. एनी वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000 कब आया ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? 2000. 2005। सो कब आया, व्हेन डिड इट कम? 2005. 2005 में आया। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सो किसके ऊपर होता जुल्म? Any Any woman. woman, Any woman. any woman. Even a father can also perpetrates domestic violence act on his daughter. कोई भी हो सकता हो, ठीक, क्लियर है पॉइंट? Yes, Not sir. just wife, not just mother-in-law, not just married sister. It can be any woman. ठीक है, next. Latest Supreme Court has given a decision. क्वेश्चन क्या है, पढ़िए एक बार। The Act number The Act 43 of 2005 recognizes domestic violence against home. डोमेस्टिक वायलेंस तो समझ जाते हैं आप, बट डोमेस्टिक किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक किसको बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट परसों बताया, लेटेस्ट द क्वेश्चन केम इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट डोमेस्टिक किसको बोलेंगे आप? एक पर्टिकुलर पैरामीटर तो होना ना। देन द सुप्रीम कोर्ट सेड कॉमन पैरामीटर, शेयरिंग ऑफ some common room. The most used common room is Kitchen. kitchen. ठीक है, sharing of नो common room, that is most used common room is always kitchen. ठीक, Kitchen. so act number 43 of 25 recognizes domestic violence against whom? Against Any woman. any woman. And if I say what is domestic, then you can say it as sharing of some common room, that is kitchen.
as definition given by the Supreme Court itself. Clear a point? Yes, sir. Yes or no? Okay. Next question. The following person is responsible for investigating and resolving complaints from the members of the public against any public organization or department or any public servants. So प्रॉब्लम्स आए, कंप्लेंट्स आए, तो उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी रहती? टेक्निकल नाम क्या है, लीगल नाम, दैट इज ऑम्बड्समैन. ठीक है, Okay. इट्स कॉल्ड एज ऑम्बड्समैन. लोक आयुक्त का क्या है? एंटी करप्शन ऑफिसर एट स्टेट लेवल. एक लोकपाल रहता, एंटी करप्शन ऑफिसर एट नेशनल लेवल इज लोकपाल, एंटी करप्शन ऑफिसर एट स्टेट लेवल इज लोकायुक्त. अगर जनरल कंप्लेंट्स रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी? Ombudsman. ऑम्बड्समैन. स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन है? जो पुलिस स्टेशन का जो हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं आप? स्टेशन हाउस ऑफिसर को. कलेक्टर इज अ कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर. समझ गए? Yes, sir. ओके. सो ये क्वेश्चन खत्म करना था मेरे को. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्लीज रीड. Which judge of the Supreme Court was posthumously what is this, sir? Posthumously माने आफ्टर डेथ. When the award is given after death, it is called as posthumously. Okay. Posthumously awarded the Padma Bhushan in 2024. Is M. Fatima Bibi. ठीक है. Okay. So who is M. Fatima Bibi? The first woman judge of Supreme Court. M. Fatima Bibi. ठीक है. Okay, sir. So we'll stop the class here. I wanted to complete all this question paper. और ये जो पैराग्राफ है, I'll send it in a PDF. Okay, So sir. we have some more questions, right? So please re-log in the Okay. second session. The session will end now.